Welcome to everyone. Welcome to my channel, which is named as B. Chemistry. Myself, Bishwajit Pal, and here we are going to discuss several topics regarding the subject chemistry. As in my first video, I explained that we will start from the physical chemistry portion, then we will go for the organic, then inorganic part. And also we have another section in which we are going to have some question answers which are important regarding any kind of competitive exams. In my introductory video, I explained that how much chemistry is important regarding any kind of competitive exam or the board exams. Here we start our YouTube channel by having the first chapter of physical chemistry named as solid state. In the lecture 1, we have discussed about the basic and the introductory part about the solid states. That is the types of solid state, that is the crystalline solid, amorphous solid. We have several amount of solids regarding their intermolecular forces. That is, we have ionic solid, we have metallic solid, we have covalent or the network solid, we have molecular solid, and so on. And we explain verifiedly each part by having some examples, by having the structure, the basic structure of those regarding crystalline solids. I hope you understand that video, and I recommend you, before watching this lecture, go for that lecture number 1 for that introductory part, because as I explained, before we start about the numerical portion of the solid state or the theoretical part in the depth of the chapter, we have to understand the types of solid, the interaction they have, the nature they have, and so on. So if you don't watch my video yet, go for the video number 1, then come to that part. I hope it should be entertaining to you, it should be knowledgeable to you, and it will boost up your knowledge as far as it can. So please subscribe to my channel. My channel name is B. Chemistry. Share, like, and also if you have any problem regarding queries and all, comment down below. I hope you understand the portion. So we start our today's lecture about solid state. So here we have the part of solid state. As I explained, go for the introductory first part, then come to that lecture. So in that introductory part, the portion where we have finished that, in that portion we discuss about the types of crystalline solid, about crystalline solid, and some several examples. Here we will start the part having that how the crystalline solids are built up. I hope it should be pretty entertaining for you, because in that lecture what we are going to do, we are going to draw some geometrical forms to explain the crystalline solid structure. As we have clearly know that when you talk about the crystalline solid, they have a definite geometrical pattern. They have a definite geometrical pattern by which repetition you have a 3D gigantic structure. Now the question will come that we have several examples regarding geometrical patterns. So which geometrical pattern is the standard one for our purpose to explain the structure of the crystalline solid? Now when you talk about the crystalline solid, as I explained, it has a definite geometrical pattern. So we have to follow a pattern, we have to follow a basic structure, a base structure by which repetition we will form this kind of gigantic 3D structure. For that I have to take an example. So if you look at this structure as an example, then this structure has a building blocks of cube, which are repeatedly
looking like this. And when they have this kind of building blocks of cube, which repetition you can form a huge structure, then you will understand that what I am talking to you. By this huge structure repetition, if you made this kind of gigantic 3D structures which has a basic pattern by which you form this kind of huge 3D structure, this is an example of the crystalline solid structure, that you have a cube which repetition you are going to have a large 3D structure which are something looking like this. Now the question will come कि सर अगर ये 3D स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो इसमें एटम का कॉम्पोजिशन कहाँ से आएगा? बिकॉज when you talk about any kind of system structure, the thing that will come, first one is geometry and the second one should be the atoms that are oriented to each other. If you look at this forms, that is जो sphere यहाँ पे दिखा गया है, these are the solid sphere and these solid sphere are something represented. If you look at that part, the solid sphere is something represented the molecules or the ions that are associated to that crystalline solid. So by taking each repetition of their combination in that whole structure, we have this whole gigantic structure. It's a very important one to understand, because before we go into the several geometrical pattern, we have to understand that what structure it should be for a solid state and what we are going to learn. Okay, because in every case we can't draw this kind of large 3D structure. अगर हर बार यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जाऊं तो सिलेबस तो खत्म नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सॉलिड स्टेट चलेगा अराउंड 20 या 25 लेक्चर तक, बिकॉज ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इतना टाइम लग जाएगा कि एक लेक्चर 1 घंटे का आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ दिस फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द बेसिक पैटर्न एट ईच केस. क्या करेंगे, वी विल टेक द बेसिक पैटर्न एट ईच केस. और ये बेसिक पैटर्न क्या होगा, ये बेसिक पैटर्न होगा कि वी विल टेक द बेस स्ट्रक्चर बाय विच रिपीटेशन दिस होल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ, दिस होल 3D स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ. ओके, just for an example, as I explained to you, we have a cube by which repetition you got this kind of long structure. So if you take only the cube and then by its repetition the structure is made up, then we have to illustrate the molecule orientation in the cube and the geometrical nature, because cube में मतलब cube तो एक geometrical form है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो 3D shape है जिसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं. We will take the basic pattern and then we will elaborate the thing by taking the molecule into it. बिकॉज खाली यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अब हम लोग को मॉलिक्यूल भी डालना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी हैव टू गेट द होल फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर. सो दिस होल फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर इज समथिंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एज एन एग्जाम्पल. And we will take the base structure, that is this. I hope you got it. Now the part is, when you have this kind of basic structure, that is which are something looking like this, you have a cube and by this cube repetition, by which repetition when you make this whole gigantic structure, इसको तो कुछ नाम देना पड़ेगा, because when you made this kind of whole gigantic structure you have to give a name, because this is the basic structure that you are repeating. So crystalline solid का जिन लोग का बहुत ही ज़्यादा एक 3 dimensional बहुत ही अच्छा hard rigid structure होता है, the basic structure which we maintain to form this whole form, इसको बोला जाता है unit cell. This is something termed as unit cell,
because unit cell is a format by which repetition we got those kind of 3D structure. Okay, as from this structure we have clearly seen that it is a 3D gigantic structure which repeat unit is a simple cube. So cube here it is termed as a unit cell. So the unit cell is classified into certain two categories. One is the 3D angle that exists between them, and the second one is the bond length or the edge length The unit cell is classified into certain two categories. One is bond length or edge length, and second one is something called a 3D angle that exists between them. So if you consider the structure of the cube, then I think you will get this point that if we have the x, the y and the z axis, then the angle between them for cube is 90 degree in each case. Okay, in each case the angle between them of 90 degree. So if the angle of xy plane is something termed as alpha, if the angle of xz plane is something termed as beta, and if the angle of yz plane is something termed as gamma, then we can write for this cube alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Okay, for this cube, which is our basic pattern by which repetition you will get this kind of whole 3D structure. Whatever it is, the solid may be artificial, the solid may be naturally making. जैसे मान लो NaCl का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है. यहाँ पे क्यूब होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, एंड बाय विच रिपीटेशन यू गॉट द ह्यूज NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अभी क्वेश्चन आएगा सर ये स्ट्रक्चर जानते हैं कैसे, बिकॉज हम लोग को तो घर में जो नमक है वो तो एक क्रिस्टल है, उसको कैसे ऐसे इल्यूस्ट्रेट कर रहे हैं आप. द पॉइंट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके एक टूल है, एक पावरफुल टूल है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पावरफुल टूल है बाय विच यू कैन गेट अ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंगली सॉलिड एक्सरे होता है, सॉलिड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है, एंड देन आफ्टर दैट प्रोसेस you can get those solid crystal structure by having this kind of specific geometrical pattern. जहां पे हम लोग सबसे इजी वाला ले रहे हैं जो है हम लोग का क्यूब, क्योंकि क्यूब को रिपीट करके हम लोग जब ये स्ट्रक्चर निकालेंगे, क्यूब हम लोग का बहुत ही एक जेन्युइन जियोमेट्रिकल फॉर्म है, एंड दैट्स व्हाई वी टेक द क्यूब at first case to understand this kind of whole 3D structure. And as I explained, this unit cell, that are something represent the basic pattern which repetition you got those kind of crystalline solid structure. It is classified into some categories regarding its 3D angle and also the bond angle. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लिया, जैसे मैंने बोला है कि फॉर द क्यूब द बॉन्ड एंगल दैट इज एग्जिस्ट, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इफ यू कंसीडर दिस एक्स वाई जेड विच इज अ 3D मॉडल, जिसके अकॉर्डिंगली इट इज अ 3D कोऑर्डिनेट, द एंगल बिटवीन एक्स वाई प्लेन, द एंगल बिटवीन एक्स जेड, द एंगल बिटवीन वाई जेड, इन बोथ केस यू हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फॉर क्यूब, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट एक्स वाई एज अल्फा, एक्स जेड एज बीटा, वाई जेड एज गामा, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इंटू 90 डिग्री. Okay, and when you consider this bond length path, okay, when you consider this bond length is something classified into that part also, that is you have a x as a coordinate, you have a y as a coordinate, you have a z as a coordinate. So along x its length is b, supposed to be considered to be, along y the length is b, and along z the length is c. Because if you consider this structure, you can easily understand the portion what I am talking about. If this is y, okay, and this is x and this is z, then you have a, you have b, and you have c, which are something represent this whole structure formation. And this a, b, c, those are something represent the bond length factor, which are very important for us. This bond length factor can be classified for the cube is a equal to b equal to c.
क्या बोला मैंने? A equal to B equal to C. For alpha equal to beta equal to gamma into 90 degree, this is our first part, and the second part is A equal to B equal to C. मतलब along x axis the bond length is A, along y axis it is B, along z axis it is C, and A equal to B equal to C. These are the characteristics of this cube form. So अगर कोई पूछा कि क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ हमको, तो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड फॉर द ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्सप्लेन द क्यूब फॉर्म, which explain the cube form. Understand the point? Okay. Now, if this is our basic unit, if this is our 3D structure, sorry, and we have this basic unit which is something looking like this, then for cube the classification is something represent alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, and for A equal to B equal to C, because if this is the 3D coordinate along x, y, along z, then this is A, this is B, this is C. This angle is something called alpha, this angle is something called beta, and this is the angle is something called gamma. Then alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, and A equal to B equal to C. This is the cube form that we have, and after repetition of this cube form, we have this gigantic structure. So this is something called for us as unit cell. अभी बोलोगे कि सर 3D फॉर्म में तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम तो देख लिया अबाउट यूनिट सेल, और क्या क्या है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल स्ट्रक्चर. क्या क्या है? There are 7 types of 3D unit cell structure, and when you talk about this kind of 3D unit cell structures, यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं. दैट इज समथिंग, सपोज एन एग्जांपल, ऑर्थोरोम्बिक. ओके, हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थोरोम्बिक. हम लोग देखने वाले हैं रोम्बोहेड्रल. क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं रोम्बोहेड्रल. दिस ओके. हम लोग देखने वाले हैं टेट्रागोनल. हम लोग देखने वाले हैं ट्राइक्लिनिक. हम लोग देखने वाले हैं मोनोक्लिनिक. हम लोग ऑलरेडी देख लिए क्यूबिक. ओके, देयर आर सम सेवरल फॉर्म्स विच वी विल हैव टू इलस्ट्रेट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड गाइगेंटिक 3D स्ट्रक्चर. अभी क्वेश्चन आएगा सर, इन बोथ केस, दैट इज फॉर द ऑर्थोरोम्बिक, फॉर द रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, in every case there are some different classification regarding the angle, the interaxis angle. Okay, ये जो angle है, that is angle between xy or the yz and the xz, whatever it is, the angle should be different in different classification. The edge length regarding 3D कोऑर्डिनेट, जो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट है, वो भी अलग अलग दिखने को लगेगा. अभी क्वेश्चन आएगा सर, इतना सारा अल्फा बीटा एंगल का ऑर्डर, इतना सारा एज लेंथ का ऑर्डर, ये याद कैसे रखे? बिकॉज इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने बोला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को लेके कम ही क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन जो आता है मोस्ट ऑफ द केसेस कमिंग फॉर द यूनिट सेल पार्ट. तुम्हें यूनिट सेल में मॉलिक्यूल को लगा के, जो हम लोग आएंगे इसके बाद वाले में, मॉलिक्यूल को लगा के तुम्हें इल्यूस्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये यूनिट सेल का जो फॉर्म है ये क्या है, मतलब ऑर्थोरोमिक है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है, क्या जियोमेट्री है, एंड रिगार्डिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, दैट इज द इंटरएक्सिस एंगल, देन द एज लेंथ एंड सो ऑन, एंड देन you have to answer the question. There are some several questions that come in the competitive exam as well as the board exam in the MCQ format. Key for the orthorhombic, which option is correct? Alpha equal to beta equal to gamma 90 degree, A not equal to B not equal to C, or A equal to B not equal to C. There are some several options which you have to give. तुम्हें वो चीज सारी चीजें दिया जाएगा and you have to answer those questions. So the first fundamental point is how to memorize this cubic unit cell structures. Sorry, this unit cell structure, not for the cubic, unit cell structures. Okay, so we start that portion.
तो क्या बात करेंगे हम लोग बात करेंगे अबाउट अ फॉर्मूला जिसका नाम है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, शॉर्टकट याद रखना है ये चीज तुमको, क्यूट आवर मदर। क्या बोला मैंने? अबाउट क्यूट आवर मदर। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये सी यू जो है, ये सी यू रिप्रेजेंट करेगा क्यूबिक। क्या बोला मैंने? सी यू रिप्रेजेंट करेगा क्यूबिक। ये टी जो है, ये टी रिप्रेजेंट करेगा क्या? ये टी रिप्रेजेंट करेगा टेट्रागोनल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉरी, टेट्रागोनल। ठीक है, ये ओ और आर इसको मिला के लिख लो, ये जो रिप्रेजेंट करेगा इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ये जो एमओ है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोनोक्लिनिक। क्या बोलेंगे? इसको मोनोक्लिनिक। ओके, ये टी जो है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई क्लिनिक। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राई क्लिनिक। ये जो H है, सॉरी, ये जो H है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग हेक्सागोनल। और ये जो R है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। हो गया ना साथ? As I explained to you, you have 7 types of 3D unit cell structure. And regarding that, it is starting from the cube, then go for the tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal, rhombohedral. अभी क्वेश्चन आएगा सर ये जो चीज़ हमने बता दिया दैट इज टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत सही है। यहाँ पे जो है मतलब जो एज लेंथ है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी बहुत सही है। और क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंगल। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का जो एंगल है वो चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब अल्फा बीटा गामा का जो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे टाइप्स। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इसको लिखिए आप, तो कैसे हम लोग ये याद रखें कि कौन सा वाला का A इक्वल टू बी आएगा, कौन सा वाला का A नॉट इक्वल टू बी आएगा। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पहले क्यूबिक लिख रहा हूँ, उसके बाद आ रहा है टेट्रागोनल, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक। क्या आ रहा है? ऑर्थोरोम्बिक। सॉरी माई मिस्टेक, और यहाँ पे थोड़ा गलत है ये चीज़। क्या आ रहा है? इसका नाम आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ओके, फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है हम लोग के पास है मोनोक्लिनिक। ओके, फिर आ रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है हम लोग के पास ट्राई क्लिनिक। फिर आ रहा है हम लोग के पास ट्राई क्लिनिक। सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जो भी है एडजस्ट कर लेना थोड़ा। फिर आ रहा है हम लोग के पास हेक्सागोनल, और एटलस जो आ रहा है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं रोम्बोहेड्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एटलस जो नाम है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं रोम्बोहेड्रल। अभी एज लेंथ का कैसे निकाले सर? एज लेंथ का बताइए। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा तुम लोग को, देखो ये होगा कुछ एक पिन कोड वगैरह की तरह, इसको याद रखो 0122। नीचे से भी इसको रिपीट करना 0122। समझ में आया कि नहीं? ये एक पिन कोड है 0122 0122। क्या है? जीरो का मतलब? जीरो का मतलब है कोई डिफरेंस नहीं है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है 1 का मतलब है एक डिफरेंस है, दैट इज A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 2 है मतलब 2 का डिफरेंस है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब फिर 2 है तो 2 का क्या आ रहा है? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर क्या आ रहा है? आ रहा है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और यहाँ पे तो 0 है, तो मतलब क्या होगा? A इक्वल टू B इक्वल टू C। ओके, तो तुम ऐसे ये शॉर्टकट मेथड में, दैट इज बाय हैविंग दिस फॉर्मूला ऑफ कॉल क्यूट आवर मदर, जिसके अकॉर्डिंगली वी विल गेट ऑल द types of unit cell 3D structure, that is cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal, rhombohedral. You can get everyone's name, and after that you can get also the age length of everyone by having this simple pin code 0122। STD कोड भी मान सकते हो इसको। A इक्वल टू B इक्वल टू से A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू से 0122। जब से ऊपर से जा रहे हो नीचे से भी तुम ऐसा करो तो दोनों जगह पे कुछ जगह में सुपर इम्पोज हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। ओके, फिर आते हैं हम लोग ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे मान लो क्यूब का तो हमने देखा ही है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, टेट्रागोनल का भी वैसा ही होता है,
ये चीज़ याद रखना, ये तीनों का मतलब टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक तक ये चीज़ बहुत ही सही है, ठीक है। ये तीनों का सेम होता है, ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इंटू 90 डिग्री होगा, उसके बाद आएगा फिर सेम, उसके बाद आएगा फिर सेम। खाली यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है एज लेंथ का। देख रहे हो यहाँ पे एज लेंथ का अलग अलग फॉर्मेट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तीनों का क्यूबिक ऐसे फॉर्मेट करके तुम लिखो, उसके बाद ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को लगाओ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल 90 डिग्री दाओ, तीनों का ही एक आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे एक ट्रिक तुम्हें और बताता हूं, जो ट्राई क्लिनिक में आओगे जिसका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू से, उसका क्या आएगा, उसका ना सारा जो एंगल है वो मिलता नहीं है किसी के साथ किसी का। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये मिलता नहीं है किसी का। अभी बाकी जो है वो थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये मैंने ट्रिक बता दिया, ये सारा ट्रिक जो मैंने है इसके बारे में मैंने बता दिया। अभी बाकी जो है ये थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आता है, देखो जो मोनोक्लिनिक है उसका कुछ ऐसा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर इसके अकॉर्डिंगली हेक्सागोनल का आ रहा है। देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120, फिर रोम्बोहेड्रल का गामा का नॉट इक्वल टू आता है, बाकी दोनों का सेम आता है। देखो तीनों का सेम आता है लेकिन नॉट इक्वल टू आता है। तो जो भी है ये तीनों तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये और ये, ठीक है। ये तीनों चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो है ये मैंने बता दिया। जैसे ये ट्रिक है इन दोनों का सेम आएगा, और ट्राई क्लिनिक का जो है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बिकॉज ये वाला भी सेम नहीं आता, ये वाला भी सेम नहीं आता, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ट्राई क्लिनिक वाला जो है ये थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। Okay, now the point is, when you talk about this 7 types of 3D structure, the first thing come to our mind कि ये 3D structure का ये जो चीज हम लोग ने बताया, these are the called unit cell. That means by this repetition you will have those kind of 3D structure of the crystalline solid जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था। Now if you remember that part, जो चीज मैंने दिखाया था, ये खाली जियोमेट्रिकल पैटर्न के बारे में बोला गया है। अभी इसके ऊपर एटम आएगा, बिकॉज हम लोग खाली जियोमेट्रिकल पैटर्न को लेकर बात नहीं कर सकते। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एटम इन दोस जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। ओके, हम लोग को ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने बताया, अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग फॉर्म आता है, किसी का क्यूबिक, किसी का टेट्रागोनल, किसी का ऑर्थोरोम्बिक। लेकिन एक चीज तुम्हें याद रखना है, दीज आर कॉल्ड द यूनिट सेल। दिस इज द रिपीटेड पैटर्न। ओके, अलग अलग का अलग अलग आएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूनिट सेल को लेके, होल स्ट्रक्चर को लेके एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आता है अगर यूनिट सेल से क्वेश्चन आता है तो, अगर स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन से क्वेश्चन आता है तो। So regarding that, these types, edge length and internuclear axis, ये तीनों चीज the characteristics portion to illustrate the 3D unit cell structure. I hope you understand. तो ये फॉर्मूला याद रखना, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको इलास्ट्रेट करेंगे। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है ले लो, उसके बाद हम लोग दूसरे में जाते हैं। थैंक यू। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द molecule or atom or ions we will put क्या बोला मैंने, जो एटम्स है, जो आयन्स है, वो इंक्लूड करेंगे हम लोग, किस में इंक्लूड करेंगे, यूनिट सेल में। अभी इसके लिए हम लोग फिर वैसे ही जैसे मैंने स्टार्ट किया था क्यूब को एज अ बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग ऑर्थोरोम्बिक वो सारे चीज़ों में आए। इसके लिए ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे बहुत ही इजी एक चीज़ है, हम लोग फिर क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, फिर हम लोग क्यूब लेंगे। ठीक है, हम लोग क्यूब लेंगे, क्यूब को हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यूब को ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंगली पहले हम लोग एक एटम्स और आयन जो भी है सिस्टम में उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे कि बाकियों में कैसा हाल होने वाला है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो ये जो क्यूब है, यहां पे कितने कॉर्नर्स है, इट हैज 8 कॉर्नर्स।
So these 8 corners should consist 8 atoms or ions. Okay, and it is something looking like this. Here we have one, 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 and here we have one. These are the 8 corners which filled up by 8 atoms or the 8 ions, and this is a compact structure for a crystalline solid. अगर यूनिट सेल के बारे में बताऊं तो रिगार्डिंग द यूनिट सेल पैटर्न, इसीलिए यहां पे 8 सेंटर है तो 8 सेंटर में 8 एटम मैक्स टू मैक्स हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 8 ही सेंटर में 8 एटम होता है तो उसको बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, और अगर 8 से ज्यादा होता है, इफ यू हैव मोर देन 8 एटम्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूएट टू दैट यूनिट सेल, okay, that is consist with that unit cell, so that is something represent non primitive unit cell. क्या बोलते हैं उसको? non primitive, चलो डॉट डॉट ही कर देते हैं, यूनिट सेल. जैसे हम लोग आएंगे इसके अकॉर्डिंगली, ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने यहां पे ड्रॉ किया है, इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव में 3 पार्ट आता है. एक को बोला जाता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरे को बोला जाता है फेस सेंटर यूनिट सेल, और तीसरे को बोला जाता है, जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है लेकिन फिर भी, तीसरे को बोला जाता है एंड सेंटर यूनिट सेल. So when you talk about body center, face center and the end center part, जैसे मैंने बोला, these are the part which are something represent non-primitive unit cell, and this non-primitive unit cell means यहाँ पे 8 कॉर्नर में 8 एटम तो होगा ही, उसके प्लस कुछ और भी एटम्स होगा जो कुछ कुछ पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. ओके, सो प्रिमिटिव पार्ट जो 8 कॉर्नर में 8 एटम होगा उसको प्रिमिटिव बोलते हैं. नॉन प्रिमिटिव में 8 से 8 तो होगा ही, उसके साथ भी कुछ होगा जो एक्स्ट्रा 8 होगा, जिसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर. 3 क्लासिफिकेशन है, एंड सेंटर, सॉरी फेस सेंटर एंड द एंड सेंटर पार्ट. तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको. देखो, पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे अबाउट प्रिमिटिव को, जैसे मैंने ड्रॉ किया है. प्रिमिटिव में क्या क्या है? प्रिमिटिव में यहाँ पे 8 सेंटर में, मतलब 8 लोकेशन में 8 एटम्स है, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. क्या बोला मैंने? इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, फिर हम लोग आते हैं नॉन प्रिमिटिव में. तो नॉन प्रिमिटिव में क्या है हम लोग के पास? हम लोग के पास नॉन प्रिमिटिव में है जो पहला स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट वन दैट वी हैव, जिसको बोला जाएगा हम लोग बॉडी सेंटर. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे 8 सेंटर में 8 एटम तो डालेंगे ही. दोज आर द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट वी हैव. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बीच में एक एटम होगा. ये सेंटर के जो बीच में एक एटम होगा जो बॉडी सेंटर कहलाया जाएगा, बिकॉज दिस एटम इज इन द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी सेंटर of this whole cube. Okay, and as it has 9 atoms which are consisted to this structure, so this is non primitive and it is something termed body centered unit cell. समझ में आ रहा है कि नहीं? The next one that we have, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है फेस सेंटर. करेक्ट. अभी देखो, तुम जिस रूम में अभी हो, रूम इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस होल स्ट्रक्चर. ओके, जैसे
जैसे हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिफ्थ सेंटर, तो यहाँ पे 8 जगह में 8 एटम तो हम लोग डालेंगे ही। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग दैट वी हैव। 8 जगह में 8 एटम तो डालेंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ करेंगे। जैसे मान लो ये जो फेस है, इसका एक फेस मतलब जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर में हम लोग एक एटम डालने वाले हैं, और 4 कॉर्नर में 4 एटम तो था ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहां पे तुम्हारे पास 6 फेसेस है। यू हैव 6 फेस वेयर इट इज समथिंग लुकिंग लाइक हियर इट इज 1, हियर इट इज 1, हियर इट इज 1, हियर इट इज 1। इसको ऊपर नीचे हो गया। अभी ये वाले मतलब ये वाला पोर्शन, इसका उल्टा उस साइड में जो पोर्शन है वहां पे एक आएगा। मतलब 6 जगह में 6 एटम्स आएगा, 6 फेसेस में 6 एटम आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द यूनिट सेल। वी हैव 7 क्लासिफिकेशन। नाउ वी पुट द एटम इनटू दैट एंड यू हैव द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड 3D फॉर्मेट। okay, and it is something primitive and non primitive. So for the primitive हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्यूबिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज बॉडी सेंटर, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक भी आएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और यहाँ पे ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। और उसके बाद जो आएगा जिसको बोला जाएगा, सॉरी जिसको बोला जाएगा एंड सेंटर। देखो मैंने पहले भी बोला था ये हम लोग का एक पेन पेपर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली जैसा मेरा हैंड राइटिंग है वो इलास्ट्रेट नहीं करेगा, थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी होगा, बिकॉज एज इट इज़ पेन टैबलेट ओरिएंटेशन। जो पेन है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो जो भी है देखो, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको बोला जाता है एंड सेंटर। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है एंड सेंटर। एंड सेंटर क्यों? एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इसलिए बिकॉज ये वाला फेज और ये वाला से फेज पकड़ लो, ये एंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक एटम दिया, यहाँ पे एक एटम दिया, जिसको बोला जा रहा है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग का 3 क्लासिफिकेशन है, एक बीसीसी, एक का सॉरी इसको शॉर्ट में बोला जाता है बीसीसी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एफसीसी, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है ईसीसी। एंड दिस आर द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सर्टेन सिस्टम। अभी जो रूम में तुम हो, दिस शुड बी द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स। जो रूम में तुम हो वो रूम में तुम्हारे पास रूफ एक प्लेन है, जो बेस है वो एक प्लेन है, और तुम्हारे चारों तरफ चारों दीवार है। सो दैट इज अ प्योर स्ट्रक्चर हैविंग 6 फेसेस। उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम ये एटम का कॉम्बिनेशन डालते हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पार्ट। जैसे मैंने बताया, यू हैव 6 फेसेस एंड यू हैव 8 कॉर्नर्स, और वो 8 कॉर्नर में एक एटम डालो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में डाला है। उसके बाद जब तुम बीसीसी में आओगे तो एक बीच में, एक पूरा बीच में, ये रूम का जो बीच है वहां पे ये एटम आएगा। अभी क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर ये ऐसे क्या कोई इंटरैक्शन नहीं है, खाली ऐसे तो नहीं रह सकता, बिकॉज ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली कोई चीज ऐसे वैक्यूम में तो रिलीज नहीं कर सकता ना, कोई भी चीज वैक्यूम में स्टे नहीं कर सकता। सो द थिंग इज हाउ कैन दिस एटम इज ओरिएंटेड इन दैट बॉडी सेंटर पोजिशन। The thing is, these atoms are not something looking like this. Okay, they are not something looking like this. They are something looking like this. They are something looking like this. हम लोग ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? Because the thing is, अगर ऐसे कुछ चीज को ड्रॉ करेंगे तो इट्स बिकम वेरी टफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स वाई हम लोग ऐसे इसको नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग खाली अलग अलग करके ड्रॉ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो इफ यू हैव द बॉडी सेंटर विच इज सराउंडेड बाय द 8 कॉर्नर्स एटम्स, तो ये चीज दिस इज समथिंग अट्रैक्टेड और द अटैच्ड विद द 8 कॉर्नर्स एटम्स, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर तुम फेस सेंटर में आते हो, फॉर द फेस सेंटर यू हैव, तुम्हारे घर में कुछ वॉल्स में तो खिड़की वगैरह होगा ही, तो खिड़की का मतलब क्या है? ये जो खिड़की है ये है जस्ट लाइक फेस सेंटर एटम, एक वॉल है, एक फेस है, उसके अकॉर्डिंगली खिड़की है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फेस सेंटर एटम। तो यहाँ पे 6 वॉल्स है, यू हैव 6 फेसेस, यू हैव 6 फेसेस, गॉट द पॉइंट।
और अगर एंड सेंटर की बात करूं तो दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट ऊपर वाला रूफ में एक है, नीचे वाला रूफ में एक है, दैट इज प्रीटी सिंपल वन। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ऊपर वाला रूफ में है, नीचे वाला बेस में है, तो इसको बोला जा रहा है एंड सेंटर। तो बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी एंड द सिंपल क्यूबिक, दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट you have to understand before we got into the whole crystal structure, because this is the basic pattern by which repetition we will construct the whole 3D structure. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जैसे मैंने बोला कि क्यूब is one of the most fundamental geometry to understand the initial phase of these 3D structures, लेकिन बाकी जो 6 स्ट्रक्चर है उसमें भी एटम ओरिएंटेशन आएगा और उसमें भी ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये सारा चीजें वहां पे आएगा। ओके, एंड द डिफरेंस इज द एंगल, दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट एज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड शुड बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अदरवाइज द सॉरी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, ए कॉमा सी कॉमा a comma b comma c. So these are the angles and these are the edge length by which you can differentiate the whole format. Okay, by which you can differentiate the whole format. Okay, so I hope you understand about this different format of this crystalline solid structures and so on. हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा फेज में वो सारे फॉर्म को लेके। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हैविंग दिस डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन्वॉल्विंग द एटम्स। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था ऑगस्ट ब्राविस। ओके, जो थे एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन द ईयर ऑफ 1848 he proposed 14 different cubic unit cell structures. सॉरी, क्यूबिक नहीं है यहाँ पे, ये वर्ड थोड़ा गलत है क्योंकि क्यूबिक को यहाँ पे डाला नहीं जा सकता। डिफरेंट यूनिट सेल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल क्यूब, सिंपल टेट्रागोनल, बीसीसी, हेक्सागोनल एंड सो ऑन. So there are some several examples about face center, body center, about tetragon, about end center. ये सारे चीज़ों को combine किया जा रहा है in different geometry, in different geometrical pattern, and we have this kind of 14 different unit cell structure which are repetition, which repetition you have those 3D gigantic structure. I hope you understand the part. Okay, so this simple cubic, face center, body center. देखो यहाँ पे पहले cubic लिखा हुआ है, फिर हम लोग आ रहे हैं टेट्रागोनल में, यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, फिर ऑर्थोरोम्बिक का चारों फॉर्म देखने को मिल रहा है, सिंपल, बॉडी सेंटर, बेस सेंटर, एंड सेंटर. फिर हम लोग आ रहे हैं रोम्बोहेड्रल में, हम लोग मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर है मोनोक्लिनिक का, और लास्ट में जो है ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर. ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर को जो ज्योमेट्री है वो सबसे खराब है, बिकॉज ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और होता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, एंड रिगार्डिंग दैट यू हैव द लीस्ट कॉमन स्ट्रक्चर. ओके, तो ये सबसे अनकॉमन स्ट्रक्चर है जो बहुत ही अनस्टेबल है रिगार्डिंग इट्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न, दैट इज कॉल्ड द ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर. लेकिन उसके अलावा जो चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, जैसे मैंने बोला क्यूब तो एग्जाम में बहुत कॉमन फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंगली यू हैव दिस 3 फॉर्म्स. एग्जाम में और एक चीज जो सबसे ज्यादा आता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक. वो होता है ऑर्थोरोम्बिक, जहाँ पे आई थिंक तुम्हें याद होगा, यहाँ पे होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. सो ऑगस्ट ब्राविस he had done a very tremendous job. He discovered 14 different unit cell structure which are the basic pattern to have a 3D crystalline solid structure, जिसको लेके अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, because those are the basic structure that a crystalline solid has.
तो बड़े स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में हट जाता है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिट सेल स्ट्रक्चर इट्स बिकम लेस कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू हैव अ ओरिएंटेशन, you have a format by which these all things are illustrated. Okay, about simple cubic, about BCC, about FCC, about end center, and so on. So in the year of 1848, these are the things that proposed, and it is a remarkable thing about the solid state chemistry and also the solid state physics part, because these are the things which represent the geometry of a cubic, of a 3D crystalline solid, including the structure obviously. Got the point? So आज के लिए इतना ही about the solid state structure, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर का जो बेसिक आइडिया है, कैसे वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कैसे क्यूब को लेके हम लोग बड़ा 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, बिकॉज इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे जहां पे बहुत सारे चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करना है बाय हैविंग दिस बेसिक स्ट्रक्चर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. और जैसे मैंने बोला, ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्यूब को समझने के लिए तुम जो रूम में हो वो सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है, उसको लो, उसको लेके ये चीज़ तुम्हें बहुत सही से समझ में आ जाएगा. अबाउट एफसीसी, अबाउट बीसीसी, अबाउट द सिंपल क्यूबिक फॉर्म, ऑल्सो द इन सेंटर पार्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉलेजेबल टू यू. जो भी चीज़ मैंने बताया, जो भी चीज़ मैंने शेयर किया. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और जैसे मैं हर वर्ष बोलता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ये जो सारी चीज़ मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग से शेयर करता हूँ, इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट. तो कुछ तो फीडबैक यार चाहिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस लेक्चर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन फॉर द सॉलिड स्टेट लेक्चर एंड ऑल. और एक चीज़ यहाँ पे आने वाला है, we will have the question answer part along with these theoretical topics, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर along to different chapters and all जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सॉलिड स्टेट का जैसे चल रहा है वैसे चलेगा. उसके along with हम लोग डिफरेंट फॉर्म, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाला है इन डिफरेंट फॉर्मेट. क्वेश्चन को लेके उन्हें आंसर सॉल्व करने वाला है. तो वो भी चीज़ देख लेना, वो वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल में. तो वो चीज़ आई थिंक तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज बहुत सारे जगह में मैंने देखा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट द आंसर ऑफ सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, दे आर नॉट दैट मच रिलेटेबल फॉर द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. ओके, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. सो रिगार्डिंग दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज पर एज इट कैन. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. तो वो वाला पोर्शन भी जल्दी आएगा चैनल में. तो इसके साथ ये जो पोर्शन है ये तो कैरी आउट होगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.